اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسی فوج تیار بیٹھی ہے جو سمندروں کا سارا پانی پی جائے گی، جو انسانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو کھا جائے گی، یہ کوئی ہالی ووڈ مووی کی اسکرپٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی سائنس فکشن رائٹر کا خیالی پلاؤ ہے۔ یہ 1400 سال پہلے ریگستان عرب میں بتائی گئی وہ خوفناک حقیقت ہے جو کسی بھی دن آپ کے نیوز چینلز کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن سکتی ہے۔ آج ہم جانیں گے زمین کے سب سے بڑے راز اور لوہے کی دیوار کے پیچھے چھپے یاجوج اور ماجوج کی مکمل اور سچی کہانی۔ دوستو، 21ویں صدی میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے زمین کو پوری طرح دریافت کر لیا ہے۔ ہم سمندروں کی گہرائیوں تک پہنچ چکے ہیں اور سیٹلائٹس کے ذریعے جنگل کے بیچ گرے ہوئے پتے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اس وسیع زمین پر آج بھی کچھ ایسے بلائنڈ سپاٹس ہیں جہاں ٹیکنالوجی اندھی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف ہمیں ایک ایسے ہی پراسرار مقام پر لے جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم بادشاہ کی، ایک خوفزدہ قوم کی اور ان درندوں کی جنہوں نے صدیوں تک زمین پر فساد مچایا۔ بات صدیوں پرانی ہے۔ زمین پر ایک ایسے شخص کا راج تھا جسے اللہ نے بے انتہا وسائل اور بے مثال حکمت سے مالا مال کیا تھا۔ قرآن انہیں ذوالقرنین کے نام سے پکارتا ہے۔ وہ صرف تخت پر بیٹھنے والے حکمران نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مسافر بھی تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ ذوالقرنین کا مشن زمین پر عدل قائم کرنا تھا۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کے عظیم سفر کیے، لیکن ان کا تیسرا سفر وہ سفر تھا جس نے انسانیت کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ مشکل اور انجان راستوں کو پار کرتے ہوئے ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جو عام دنیا سے کٹی ہوئی تھی۔ قرآن اس جگہ کو بین السدین یعنی دو پہاڑوں کی رکاوٹوں کے درمیان کہتا ہے۔ یہاں قدرت نے دو عظیم الشان پہاڑ کھڑے کر رکھے تھے جن کے درمیان ایک تنگ سا راستہ تھا۔ یہ جگہ ویرانی اور خوف کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہاں ذوالقرنین کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو شدید دہشت میں تھی۔ ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں موت کا سایہ تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ بات سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن خوف کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ ان کی کپکپاہٹ اور ان کے اشارے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں ہیں۔ جب ذوالقرنین کے ترجمانوں نے بڑی مشکل سے ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کسی عام دشمن سے نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق سے ڈر رہے ہیں جو انسانیت کی دشمن ہے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان دو پہاڑوں کے درمیان اس کھلے راستے کی طرف اشارہ کیا اور فریاد کی، اے ذوالقرنین، ان دو پہاڑوں کے اس پار یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج جو حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اپنی طاقت اور وحشت میں بے مثال تھے۔ وہ انسانی شکل میں ہونے کے باوجود درندے تھے۔ اس قوم نے بتایا کہ وہ زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ وہ ہماری بستیوں میں گھس آتے ہیں، ہماری فصلیں تباہ کرتے ہیں، ہمارے جانور کھا جاتے ہیں اور بے پناہ خون بہاتے ہیں۔ اس قوم نے جب ذوالقرنین کی شان و شوکت دیکھی تو انہیں امید کی کرن نظر آئی۔ وہ لوگ دوڑے اور اپنا جمع کیا ہوا مال لے آئے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم آپ کو مال و دولت دیں؟ کیا ہم آپ کو خراج دیں؟ ہم اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دیں کہ وہ کبھی واپس نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین نے اس سونے کے ڈھیل کو دیکھا۔ کسی بھی عام بادشاہ کے لیے یہ منہ مانگی قیمت ہوتی، لیکن ذوالقرنین نے انکار میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو قرآن نے محفوظ کر لیا، جو طاقت اور مال میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا اور کہا، تم بس اپنی قوت بازو سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دوں گا جو قیامت تک قائم رہے گی۔ ذوالقرنین جانتے تھے کہ پتھر کی دیوار یاجوج ماجوج کو نہیں روک پائے گی۔ وہ طاقتور ہیں، وہ پتھروں کو توڑ دیں گے یا ان میں سوراخ کر لیں گے۔ انہیں ایک ایسا مٹیریل چاہیے تھا جو ناقابل شکست ہو۔ ذوالقرنین نے حکم دیا، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ ہزاروں مزدوروں نے دن رات محنت کی،
पहाड़ों को खोदा गया और लोहे के भारी भरकम ब्लॉक्स को उन दो पहाड़ों के दरमियान नीचे से ऊपर तक चुन दिया गया। दीवार उठती गई, यहाँ तक कि वो दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई, लेकिन अभी लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान दरारें थीं। जुल्करनैन ने कहा, इस लोहे को आग से दहकाओ। पहाड़ों के दरमियान बड़ी बड़ी भट्टियां जलाई गईं। हजारों लोगों ने धोंकनियों से हवा दी। आग का ऐसा मंजर था कि लोहा सुर्ख अंगारा बन गया। पहाड़ों के दरमियान की जमीन तन्नूर की तरह तपने लगी। जब लोहा गर्म होकर फैलने लगा तो जुल्करनैन ने आखिरी और सबसे अहम हुक्म दिया, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ। उन्होंने उस गर्म सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। साइंस ये कहती है कि जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो वो एक ऐसी धात बनाते हैं जो लोहे से ज़्यादा सख्त होती है और उस पर जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान तमाम दरारें भर दीं। जब वो दीवार ठंडी हुई तो वो कोई मामूली दीवार नहीं थी। कुरान कहता है, फिर वो याजूज व माजूज ना तो उस पर चढ़ सके और ना ही उसमें नक़ब लगा सके। वो दीवार शीशे की तरह चिकनी और फौलाद से ज़्यादा सख्त थी। उस दिन वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। जुल्करनैन ने उस दीवार को देखकर गुरूर नहीं किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये मेरे रब की तरफ से एक रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। दीवार बन गई, जुल्करनैन चले गए, वो कौम महफूज हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो हमेशा के लिए कैद हो गए? दीवार के उस पार क्या हो रहा है? क्या वो सो गए हैं? हदीस बताती है कि नहीं। हमें लगता है कि जुल्करनैन ने दीवार बना दी और किस्सा ख़त्म हो गया। हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले हजारों सालों से इस दीवार के पीछे एक जंग जारी है, एक ऐसी जंग जिसके बारे में दुनिया बेखबर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज सोए हुए नहीं हैं, वो हर रोज जागते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, इस दीवार को गिराना। जरा तसव्वुर करें वो मंजर, हजारों लाखों की तादाद में ये खौफनाक मखलूक अपने नोकीले पंजों और औजारों से उस लोहे की दीवार को खोद रही है। चिंगारियां उड़ती हैं, लोहे पर खराशों की आवाजें गूंजती हैं। वो सुबह से शाम तक पूरी ताकत से दीवार तोड़ने में लगे रहते हैं। मेहनत करते करते शाम तक वो इस मकाम तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें दीवार के पार से सूरज की हल्की सी किरण या रोशनी नजर आने लगती है। वो आज़ादी के बिल्कुल करीब होते हैं, दीवार बस टूटने ही वाली होती है। तब उनका सरदार कहता है, रुक जाओ, बहुत काम हो गया है, बाकी कल सुबह आकर तोड़ेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन वो सदियों से एक ही गलती करते आ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। जब वो रात को सो जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है, रातों रात वो टूटी हुई दीवार वापस जुड़ जाती है। सुबह जब वो उठते हैं तो हैरान रह जाते हैं, दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत और सख्त हो चुकी होती है। सदियों से यही खेल चल रहा है, रोज खोदना, रोज इंशाअल्लाह भूलना और रोज अल्लाह का इस दीवार को वापस जोड़ देना। ये अल्लाह का निज़ाम है कि जब तक वक्त नहीं आएगा ये सैलाब रुका रहेगा। लेकिन दोस्तों, हर कैद की एक मुकर्ररा मुद्दत होती है। कोई जंजीर हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन आएगा जब दज्जाल का फितना खत्म हो चुका होगा, जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी, दुनिया अमन महसूस कर रही होगी। उसी शाम याजूज व माजूज दीवार खोदेंगे, हमेशा की तरह रोशनी नजर आएगी। लेकिन उस दिन अल्लाह उनकी जबान पर एक लफ्ज जारी कर देगा। उनका सरदार कहेगा, चलो बाकी कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये पहली बार होगा कि वो इंशाअल्लाह कहेंगे। अगली सुबह जब वो वापस आएंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़कर गए थे, टूटी हुई। वो एक आखिरी धक्का मारेंगे और सदियों पुरानी वो अजीम लोहे की दीवार धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। फिर जो मंजर होगा वो इंसानियत ने आज तक नहीं देखा। कुरान कहता है वो हर ऊंचाई से फिसलते हुए नीचे उतरेंगे। वो किसी मुनज़्ज़म फौज की तरह नज़्म ज़ब्त में नहीं आएंगे, बल्कि पानी के सैलाब की तरह आएंगे। उनकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि कोई घोड़ा या गाड़ी उनसे बच नहीं पाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इनका पहला बड़ा गिरोह बहीरा तबरिया के पास से गुजरेगा, जो शाम और फ़लस्तीन के दरमियान एक बड़ी झील है। पहला गिरोह रुकेगा और झील का पानी पीना शुरू करेगा।
हजारों लाखों पीते जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो झील सूख चुकी होगी, जमीन फट चुकी होगी। वो हैरत से कहेंगे, लगता है कभी यहां पानी हुआ करता था। वो आगे बढ़ेंगे। जो उनके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। न औरत बचेगी, न बच्चा, न जानवर। वो जमीन को साफ करते चले जाएंगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों और किलों में कैद हो जाएंगे। हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे। पूरी दुनिया याजूज और माजूज के कब्जे में होगी। जमीन पर हुकूमत करने के बाद उनका तकब्बुर आसमान को छूने लगेगा। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। वो अपने तीर और नेज़े आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह उन्हें ढील देगा। उनके तीर खून में लिपटे हुए वापस आएंगे। वो खुश होंगे और जश्न मनाएंगे कि हमने आसमान वालों को कत्ल कर दिया है। उस वक्त हालात निहायत सख्त होंगे। खाने की ऐसी कमी होगी कि एक बैल का सर भी 100 दीनार से ज्यादा कीमती समझा जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करेंगे, या अल्लाह इस अजाब को हमसे दूर कर दे। अल्लाह अपने नबी की दुआ कैसे रद्द कर सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी फौज को मारने के लिए अल्लाह ना कोई एटम बम भेजेगा और ना फरिश्तों की फौज। अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक को भेजेगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा करेगा जिसे नगफ कहा जाता है। ये एक किस्म का कीड़ा है जो बकरियों और ऊँटों की नाक में होता है। रात के वक्त ये बीमारी फैलेगी और सुबह होते होते करोड़ों की तादाद में याजूज और माजूज एक साथ मर जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं, वो ऐसे मरेंगे जैसे एक ही जान मरा करती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी जब डरते डरते पहाड़ से नीचे झांकेंगे तो हर तरफ खामोशी होगी। एक बहादुर शख्स को नीचे भेजा जाएगा। वो वापस आकर खुशखबरी देगा कि दुश्मन हलाक हो चुका है, लेकिन जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं होगी। हर तरफ लाशें और शदीद बदबू होगी। जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे, अल्लाह ऐसे लंबी गर्दन वाले बड़े परिंदे भेजेगा। वो आएंगे, उन लाशों को अपने पंजों में उठाएंगे और वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। इसके बाद अल्लाह एक ऐसी रहमत की बारिश बरसाएगा जो मिट्टी के घरों से लेकर खैमों तक हर जगह पहुंचेगी। ये बारिश पूरी जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ और चमकदार बना देगी। जमीन को हुक्म दिया जाएगा, अपने फल उगा और अपनी बरकत वापस ला। जमीन इतनी बाबरकत हो जाएगी कि एक अनार का छिलका इतना बड़ा होगा कि पूरी जमात उसके साए में बैठ जाएगी। शेर और बकरी एक साथ चढ़ेंगे। बच्चे सांपों से खेलेंगे, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, याजूज और माजूज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। वो दीवार आज भी वहीं है, वो कोशिश आज भी जारी है। सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे, सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो क्या हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम दज्जाल और उस फितने का मुकाबला कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। वस्सलाम।